Yes, please, Dr. Chinu ma'am. Good evening, everyone, and welcome to the first webinar of this year. And with a lot of enthusiasm and excitement, we start this year with many new learnings from the last year. At the outset, I would like to thank Shri Mahendraji Kabra, MD RR Cable and Managing Trustee of HEMA Foundation for this initiative, which has given such a lot of meaning to my life. And this light has reached almost 5 lakh plus students, teachers, and parents already. Friends, I would like to ask, how many of you are getting introduced to HEMA Foundation for the very first time? If this is your first time getting introduced and you are attending this webinar, you are new to this, just write new in the chat box so that I can understand. Okay, there are quite a few new people over here. Wow, many new people over here. Okay, so now I want to understand, is there anyone who's, oh my God, so many new people. Is there anyone in the group who is very old, right from the beginning, who has attended all the webinars? Are there some such people who are old, who are acquainted with HEMA Foundation right from the very beginning? Are there some such people? If you are one of them, you can tell that I am. I am in the chat box and we will invite you to speak. Oh, there is no one who is, I think Lata ji from Disha Delphi must be old. Lata Lakhotia. And I could see some other names of schools who are associated. Diksha from DDPS must be old. Lata ji, you are old. You are associated with us since last 6-7 years now. Can we, can you please come on the video, Lata ji? Or anyone else from Disha Delphi? Sundar ji, can you spot any familiar faces, any familiar names? तीन बातें समझती हूँ हमारे प्रोग्राम के सक्सेस के पीछे। एक तो टीचर्स का ये कन्विंस्ड होना कि ये प्रोग्राम कितना जरूरी है। अगर टीचर्स हमारे कन्विंस्ड हैं और हमारे साथ फुल्ली एंगेज्ड हैं तो हमारा प्रोग्राम 80% यही सक्सेसफुल हो गया। 80% दारोमदार मुझे लगता है टीचर्स के ऊपर है हमारे प्रोग्राम का। उसके बाद 10% पेरेंट्स आर कन्विंस्ड। इफ पेरेंट्स आर कन्विंस्ड तो 80+10 90% प्रोग्राम सक्सेस हो गया। देन पेरेंट्स ऑल्सो मोटिवेट द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द प्रोग्राम and only 10% remaining 10% is on the students because students तो आप लोगों को पता है वो कच्ची मिट्टी की तरह है। आप उनको जैसे जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उंगली पकड़ के शुरुआत से वो वैसे ही चल पड़ेंगे। अभी हम लोग एज पेरेंट्स एज टीचर्स बहुत कंप्लेन भी कर रहे हैं कि दिस जनरेशन इज so much into gadgets and phones. But I, as a psychologist, always feel that we have a very great big role to play in how and what they are behaving. How many of you feel that we as teachers and parents are more responsible for the kind of behavior that we are seeing in the children nowadays? If you agree with me, please say agree. If you disagree with me, please say disagree. And then we can discuss about this for a minute. Are already agreeing with me? Yes, हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मुझे लगता है
कि हेमा फाउंडेशन जो कर रहा है ना, वो पेरेंट्स और टीचर्स को पहले एम्पावर कर रहा है. वी आर आवर फर्स्ट स्टेप इज empowering the teachers and the parents. We are partners for the teachers and parents before we are partners with the students. Okay, so dear friends, Lata ji just told you a bit about her experience with Hema Foundation. Now I would like to address the people who are new today to help me understand what is your expectation from Hema Foundation and what did you hear about it already? What is it that you already know about us? Can you please tell me in the chat? आपने हमारे बारे में क्या सुन लिया है, आपको क्या पता है, और आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ सेफ प्लेस. ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं ही आप लोगों को बोलूंगी, या ये एक इंटरैक्टिव स्पेस है जहां पर आप अपनी बात बिल्कुल बेझिझक होकर रख सकते हैं. एंड दिस इज द स्पेस विच वी गेट टू टॉक विद ईच अदर. यही एक जगह है जहां पर हम एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं. सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन पुटिंग फोर्थ योर व्यूज ओवर हियर. So we have to develop social responsibility sense among students. Priya ji bol rahi hai, Priya Sharma. And Varsha is saying value education. Okay. Make students think about new ideas. Wow. Alina Qureshi. Great. What else? Personal development and time management. Anisha Banerjee. Sindhu Jadhav, tell us about new program. You want me to tell you about the new program, Sindhu ji? Acquire practical knowledge, Aarti. Deepa Garg, social emotional learning, SEL. Yes. Yes. Okay, great. Thank you so much. So let's see what do we have in store for you. But before we go there, I want to ask all those who are associated with us since long now, have you done two things? क्या आपने ये दो काम ऑलरेडी अपने स्कूल में कर लिए हैं? अगर आपने कर लिए हैं तो आप लिखिएगा डन इन द चैट बॉक्स. वन, have you allocated 5 internal assessment marks for Hema Foundation programs? And have you allocated a separate period for us? Have you allocated a separate weekly period for us? If you have done this, please write done. Varsha Mahiwal, you have done this. So please tell me also your school. Which schools have already done this? Varsha Mahiwal, yes, Disha Delphi Public School has already done it. Deepti Magdum, Coral Bells International School has already done this. Gayatri Primary School, Kalyan has already done this. Wonderful, wonderful. So these are the, I think, two prerequisites. जहां पर ये दो चीजें हो गई हैं, प्रार्थना इंग्लिश स्कूल CBSE Nalsopara has done this. And Varsha, one thing done, second is going on. Okay, so you are trying to incorporate the program in one period. Okay, great. So friends, next slide, please. This is the very first orientation for this year, and all those teachers who are attending this orientation and who are going to attend all the webinars that we are going to conduct every month from now on, and they also submit the MCQs that we are going to send to you after this webinar, will be eligible to get certified as HAME Value Educator. So please be careful while you attend this.
Be consistent in attending all these webinars, and that HAME Value Educator certification is in collaboration with the university. So we have a few universities with whom we have signed the MOUs. So when you are attending these webinars, attend them sincerely, consistently, and fill all the MCQs so that at the end of the year during the valedictory session, we can certify you as HAME Value Educators. So friends, HEMA Foundation, to begin with, is an NGO not only with a vision and mission, but also a lot of meaning and purpose. This is an organization which started in the memory of our loving and affectionate Hemaji Kabra, who is the late wife of Sri Mahendraji Kabra, in order to keep her alive in our memories and also keep her values and her legacy, which she has left with us, living in every heart and soul that HEMA Foundation touches over the years. And I think that we are doing a good job at it, and HEMA ji must be smiling at all of us from the heavens right now. So to begin with, a tribute to Hemaji Kabra, the reason, the inspiration behind HEMA Foundation. What is our vision? Our vision is simple. We want to cultivate a conscious understanding of human values, not only in students, but also in all individuals whom we come in contact with, in order to help them to coexist in this world peacefully and harmoniously, so that we all can live a meaningful, fulfilling, and rich life. This is the simple vision of HEMA Foundation. How many of you feel that this vision aligns with your own vision of life? हम सब शांति से रहें, मिलजुल के रहें, अच्छी तरह से जीवन अपना यहाँ पर ऐसे जिए कि जिससे हमारी अपनी लाइफ तो रिच और फुलफिलिंग रहे ही, और हम दूसरों की लाइफ में भी मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पाए. If you think that this vision aligns with your own vision in life, then you are at the right place, dear friends, because only then we will be able to collaborate and create a purposeful contribution through HEMA Foundation. Now, what is our mission? Our mission is to touch the schools, organizations, and communities through a well-researched and structured program. So we are not ambiguous or vague in our approach. We are systematic, scientific, structured, while keeping it simple, accessible. But what is it that we want to do? We want to again create children who become responsible and effective adults, so that harmonious existence for all can be ensured. This is our mission in short. Next. Next slide, please. So the full form of our program, which we call as the HEMA Seed program, is HEMA Foundation's Social, Emotional, Ethical Development. It's not just social emotional learning. We have added ethical development to it. So it becomes HEMA Seed. And the social skills, we all know, are going for a toss because of the way we are interacting on a continuous basis with the mobile phones and other gadgets. My dear friends, as I speak to you, please let me know if you want me to mix English and Hindi both. या फिर कहीं भी अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं और मुझे आप चाहते हैं कि मैं कोई चीज को या किसी सेंटेंस या वर्ड को फिर से एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप चैट में लिख सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. सो सोशल इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है.
नेक्स्ट। अब इसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि ये साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोग्राम है, साइकोलॉजी के फ्रेमवर्क्स पर डेवलप्ड है, एविडेंस बेस्ड है। ये 50 कोर वैल्यूज को कवर करता है, थर्ड से लेके ट्वेल्थ तक। अभी हमने एक हेम युवा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, और हम हेम प्रारंभ प्रोग्राम को भी डेवलप कर रहे हैं जो छोटे बच्चों के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए है। पर फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको आप याद रख सकते हैं कि ये थर्ड से लेके ट्वेल्थ तक है। हर ग्रेड में 5 कैपेसिटीज हैं, और हर कैपेसिटी की 10 वैल्यूज हम कवर करते हैं। ये जो पूरा हमारा प्रोग्राम है इसमें दो खास बातें हैं। एक तो ये मूवीज हमने हर वैल्यू की बनाई है, 20 से 25 मिनट की मूवीज जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। और इन मूवीज के अराउंड हमने जो पूरा करिकुलम है 4 पीरियड्स का, 1 महीने का तैयार किया है, जिसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है वो है प्रोजेक्ट्स। हर वैल्यू के हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअल है, एक ग्रुप है और एक फैमिली प्रोजेक्ट है। तो ये आगे चल के मैं और समझाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम क्या करते हैं, 50 शॉर्ट फिल्म्स को हम यूज करते हैं ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन की तरह। ये मूवी देखना या दिखाना अपने आप में कोई एंड नहीं है इस प्रोग्राम का। इस मूवी को दिखाने से पहले और इस मूवी को दिखाने के बाद की जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी एक स्टिमुलेशन की तरह हम यूज करते हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि हम इंडिविजुअल, ग्रुप और फैमिली प्रोजेक्ट्स जो उनको देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो करते हैं, दे इम्प्लीमेंट समथिंग, दे अप्लाई समथिंग। फिर मैंने जो बताया हेम वैल्यू एजुकेटर जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, ये इसकी तीसरी हाईलाइट है। और चौथा, हम प्री और पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट्स भी करते हैं, जो दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स हम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है वो एनईपी और एनसीएफ दोनों से अलाइंड है। हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर बना है, जिसमें जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसमें साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स और रिसर्चर्स सभी लोग शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा जो अप्रोच है आप देख पा रहे होंगे कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। और जैसा लता जी ने जब हमसे बात की स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भी कहा कि इसका जो संबंध है वो टीचर्स के इम्प्रूवमेंट और टीचर्स के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए भी बहुत बहुत होता है। सिमिलरली पिछले साल हमने फैमिली प्रोजेक्ट्स ऐड किए, इस साल हमें लगता है कि फैमिली प्रोजेक्ट्स का भी हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, ये पूरे इकोसिस्टम को हम एड्रेस कर रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप सबने सुना होगा, एनईपी की जब आपकी क्लासेस हुई होंगी सीबीएसई या आईसीएसई की तरफ से, तो आपको इसके बारे में पता होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में थिएट्रिकल लर्निंग नहीं होती, ना ही थ्योरेटिकल लर्निंग होती है। इसमें हम लोग कोलैबोरेटिव वे में जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं तो इंक्विजिटिव नेचर का ये वर्क होता है, ये टास्क होता है, जिससे लर्निंग मल्टीप्लाई होती है, इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन और कोलैबोरेशन एनहांस होता है। और दूसरा, एक्सपीरियंशियल और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होने की वजह से ये लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये सस्टेन करती है लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के द्वारा हम सोशल इमोशनल लर्निंग और बच्चों की, टीचर्स की और पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सोचना भी पड़ता है, उन्हें जो महसूस होता है उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में जो करते हैं कार्य, कमिटेड एक्शन जो करना पड़ता है, उसकी वजह से दे आर
experiencing a shift in their attitudes and in their overall emotional well-being. Next. सो ये कैपेसिटी वाइज कैलेंडर देखिए, आप एक कॉलम में देख पा रहे हैं सारे ग्रेड्स, और ऊपर जो 5 कॉलम्स के हेडिंग्स हैं उसमें कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, एथिकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी और लाइफ स्किल्स, ये 5 कैपेसिटीज हैं। हर कैपेसिटी का एक एक टॉपिक हर बच्चे को एक ग्रेड में मिलेगा। इसका मतलब ग्रेड 3 के बच्चे को 5 टॉपिक्स कवर करने होंगे एक एकेडमिक ईयर में, जिसमें हर टॉपिक एक अलग कैपेसिटी बिल्डिंग का टॉपिक होगा। तो थर्ड से लेकर और 12th तक जब ये बच्चा जाएगा तो हर कैपेसिटी के 10-10 टॉपिक से कवर कर चुका होगा, और टोटल 50 टॉपिक्स from 3rd to 12th he should have experienced if he is continuously and consistently undergoing our program. Next. So अब हम आते हैं कॉग्निटिव कैपेसिटी पर। कॉग्निटिव कैपेसिटी को जरा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहती हूँ। जब हम कॉग्निटिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे माइंड को आप एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह देखिए। ये हमारा माइंड है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हमें आउटपुट तभी दे पाएगा जब हम उसे इनपुट देंगे। हमारे माइंड को जो इनपुट मिलता है वो 5 सेंसेस के द्वारा मिलता है। आप सभी को पता है कि ये 5 सेंसेस कौन सी है। एक है हमारी विजन, एक है हमारी हियरिंग, एक है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ टच। इन 5 सेंसेस से हमें कंटिन्यूअस इनपुट मिलता रहता है। इस इनपुट को हमारा ब्रेन अंदर ही अंदर पहले प्रोसेस करता है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। उसके बाद वो आउटपुट देता है। जब हम इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली कौन से प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं? इनपुट लेने के लिए हमें पहले अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन कैसे देना पड़ेगा? कंसंट्रेशन से देना पड़ेगा। जो वो इनपुट है उसको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके साथ हमें एसोसिएट होना पड़ेगा खुद को, और फिर उसके बाद जो लर्निंग होगी, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग होगी। जब डिसीजन हो जाएगा तब हम अपनी मोटर मसल्स को सिग्नल देंगे कि भाई इस सिचुएशन में अब आप ये कीजिए। सो द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आर टेलिंग मी कि बच्चों की मेमोरी पहले से बहुत खराब हो गई है, अभी याद नहीं रह रहा है, उनकी कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, फोकस नहीं है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। क्या आप लोग भी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? और केवल बच्चे ही नहीं, हम खुद भी, अडल्ट्स भी, अभी हमें ऐसे ब्रेन फॉग जैसी स्थितियां हमें भी फील हो रही है, जहां पर हमें भी बहुत जल्दी कुछ याद नहीं आता, किसी के नाम हम भूल जा रहे हैं, कोई सेंटेंस जो बोलने वाले थे वो भूल जा रहे हैं, कहीं हम अटेंशन देना चाहते हैं पर कहीं और हमारा अटेंशन जा रहा है। सो क्या आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस वक्त? तो कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है डेवलप करना बहुत रेलिवेंट है। अब इसको करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे कि इससे हमें लेक्चर जैसा ना फील होकर हम वाकई में इसके लिए कुछ कर पाए। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी के फर्स्ट 3 वैल्यूज के मैं प्रोजेक्ट्स आपको बताती हूँ, तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो अप्रोच है वो कितना प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल और इफेक्टिव अप्रोच है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज का नॉलेज गेन करें, किसी चीज को सीखें, तो जब आपके ऊपर मान लीजिए जबरदस्ती की जाती है, मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने या डायरेक्टर ने आज आपको बहुत सख्त ताकीद देकर और बोला कि आज हेमा फाउंडेशन का आपको अटेंड करना है वेबिनार, कुछ भी हो जाए, नहीं तो हम आपकी 1 दिन की तनख्वाह काट लेंगे। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे वेबिनार में,
पर मुंह उतार के बहुत ही जबरदस्ती से, जैसे किसी ने आपको पीट दिया हो, ऐसे करके आप बैठे रहेंगे, पर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। पर अगर आप अपनी खुद की क्यूरियोसिटी से कि देखे तो सही क्या है ये फाउंडेशन, क्या कर रही है काम, इसकी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या यूजफुलनेस है, अगर ये सोचकर आप आते हैं, सो सो फ्रेंड्स, जब हम अपनी क्यूरियोसिटी से किसी भी लर्निंग में एंटर करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, या जब हम जबरदस्ती करते हैं किसी के कहने से? बताइए क्या डिफरेंस होगा? विलिंगनेस विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्यूरियोसिटी विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो हमने हमारे जो थर्ड स्टैंडर्ड का पहला कैपेसिटी का पहला टॉपिक है वो ही क्यूरियोसिटी लिया है। और क्यूरियोसिटी में इंडिविजुअल, ग्रुप और फैमिली, तीन हमने प्रोजेक्ट्स लिए, जिसमें से फैमिली प्रोजेक्ट हमने बड़ा इंटरेस्टिंग लिया इसमें, टू हेल्प चिल्ड्रन टू बिकम क्यूरियस अबाउट देयर ओन पीपल इन द फैमिली. So one special person they have to select, and they have to, interview them with lot of curiosity. So for example, if it is their grandfather or grandmother, they go with a list of questions which we have provided to them, and they can add their own questions as well. जहां पर वो पूछ रहे हैं आप कहाँ पर पैदा हुए थे, कौन से शहर में, आपके मम्मी पापा क्या करते थे, आप स्कूल गए थे क्या, आपके समय में स्कूल कैसा होता था, आपका कौन सा फेवरेट गेम था। सोचिए ऐसी क्यूरियोसिटी से जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे पास बैठेंगे और ये सारे आंसर्स लिखेंगे तो क्या होगा, क्या क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या होने वाला है वहां पे? प्लीज गिव मी सम आंसर्स. So there'll be bonding, yes. And do you think this bonding is missing? Bond strengthens. Next. Next slide. Next slide, please. Next, please. Next. Next, next करते जाइए. ये पीपीटी जो है ना हम अपलोड कर देंगे अपने पोर्टल पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके पूरा देख भी सकते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज अरविंद जी. इस पे मैं वापस आती हूँ, तो आप एक बार आगे चले जाइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सो देखिए ये फैमिली प्रोजेक्ट है जो मैं अभी आपको बता रही थी, माय स्पेशल पर्सन. इसको थोड़ा और नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, इसका एक प्रोजेक्ट, एक्चुअल प्रोजेक्ट में दिखाना चाह रही हूँ. नेक्स्ट. 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 देखिए ये एक बच्ची है जिसने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया. She sat with her grandmother and she asked her the questions, and she has submitted this project where she has titled her A Journey into My Family's Heart. And she says, my grandmother's name is Archana. She's 68 years old, but she's still super active at this age. I like my grandmother because she cooks my favorite delicious foods for me. So all these things she has. Her parents died at the age of 5 years. She has three sisters. Her aunt brought her up with her sisters. She did not go to school because of the financial. Look at what kind of conversation, deep conversation is happening between this small little girl and her grandmother. So देखिए हम केवल क्यूरियोसिटी नहीं, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि एक वैल्यू के एक प्रोजेक्ट से केवल एक चीज डेवलप हो रही है. क्यूरियोसिटी के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल रेजिलियंस, सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है. इसी तरह ग्रेड 4 का हमारा प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का है, जिसमें हमने उनको पूरा टास्क लिस्ट बनाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी 30 डेज की ट्रैक शीट दी है. और इसी तरह से हमने करेज का जो ग्रुप प्रोजेक्ट है जो हमने दिया कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, आपको एक कोलाज बनाना है ये देखकर कि हमारे जो बच्चे हैं
वो कौन से ब्रेवरी के काम कर रहे हैं जिनको 26 जनवरी को अवार्ड भी दिया जाता है। जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी क्वालिटीज वो अपने अंदर भी अमल में ला सकते हैं। अब मैं आपको अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेवलप किए। ये कोई ऐसे रैंडमली क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट्स नहीं है। इनका फायदा पूरा पूरा तभी आप उठा पाएंगे जब आप सिंसियरली अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो इनको जैसा इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके ही करें। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में हम जो लैब का एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं, तब उसके रिजल्ट मिलते हैं। उसी तरह अगर हम इनको उसी तरह से करके सबमिट करेंगे, तभी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज सबमिट करने के लिए हमने देखा पिछले साल बच्चों ने कुछ भी फोटो सबमिट कर दी, कुछ भी वीडियो सबमिट कर दी, जस्ट टू फिनिश इट। फिनिशिंग का हमारा कोई उद्देश्य है ही नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो पूरे मन से करिए। पूरे मन से करेंगे तो आपको पूरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आप जैसे अपने बच्चों को मोल्ड करना चाहते हो, जिस तरह की उनके लिए लाइफ आप विजन कर रहे हैं, वो पूरी हो पाएगी। With this appeal, I end this webinar for this year, the very first one over here, and I hope that we will keep meeting in every webinar from this month onwards, and you will start implementing HEMA Foundation portal, HEMA Foundation program, the HEM Seed program for your children in the school, with two caveats. Please allot assessment marks, तभी ये इफेक्टिव होगा, और एक पीरियड जरूर इसके लिए अलॉट कीजिए। थैंक यू सो मच।